Many of you must be thinking कि हमको पता नहीं होगा. None of you are beyond our reach. Most of you are using your fake account, trying to tarnish the hard-earned image of my personal life as well as to the coaching institute. और ये तय करना है कि सक्सेस पॉइंट में इतना निकलता है कि इतना हजारों का स्टूडेंट में से किसी ने नहीं निकलेगा. हम नहीं बोलता है कि क्या बोलता है वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट, हम नहीं बोलेगा, बट वी वर्क वेरी वेरी हार्ड विद व्हाट कॉल डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमिटमेंट के साथ काम करना है कि सक्सेस पॉइंट में कुछ पेपर सेलिंग होता है बहुत, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए. वी वेलकम दैट. मीडिया ब्रीफिंग इज रिलेटेड टू ongoing APPSC paper leakage fiasco and the subsequent social media trial by leveling baseless allegation against Success Point Coaching Institute by some people and to me. First and foremost, let me introduce myself. I am Nangram Pinkap. I am an APCS officer of 2009 batch, currently posted as Special State Project Director under Samagra Shiksha in Education Department, Government of Arunachal Pradesh. The gentleman sitting on my right is Sri Nalo Darang. He has come all the way from Pangin in Siang district this morning. He is currently working as a PGT, postgraduate teacher in geography at the Government Higher Secondary School Mebo in East Siang district. However, it is made clear that this press briefing or clarification is nothing to do with my profession as a special SPD or as government servant. I am fully aware of my limitations as government employee and well conversed with the Central Civil Service rules which governs my activities. I repeat, this press briefing or clarification is nothing to do with my profession as a special SPD or as government servant. I am fully aware of my limitations as government employee and well conversed with the Central Civil Service rules which governs my activities. Therefore, my controlling authority or my appointing authority has nothing to do with this press briefing. Rather, I have called this press briefing under compulsion and as a last resort to defend myself and the Success Point Coaching Institute, because there has been a lot of media trial, social media trial on my personal life as well as on coaching center Success Point, including the faculties or teachers of Success Point, particularly to Rajiv Sir of Success Point. In addition to this, it is made clear that we are not interested to be in limelight. Rather, we always try our level best to maintain low profile and concentrate on our own works. So please don't take this press briefing as trying to blow things out of proportion and as if we are very much interested to be publicized or to remain in limelight. It is very unfortunate that paper leakage has happened in APPSC. The fiasco which has happened in the commission is condemnable and the people involved in the corrupt practices should be given exemplary punishment. Our sympathy and our concerns are with the thousands of aggrieved candidates. Our sympathy and concerns are with the thousands of aspirants and more particularly with the deprived candidates. Having said this, it is to state that my name, Nangram Pinkap's name, Success Point Coaching Institute and the faculties of the coaching center, particularly Rajiv Sir's name, has been linked to APPSC paper leakage by some people in social media, particularly in a Facebook page called Mission APPSC. We have been observing all the comments and allegations for the last many days. Success Point has been tagged as a paper seller institute, as epicenter of paper selling, so on and so forth. Many of them have been asking for SIC inquiry, CBI inquiry. Many of them have been saying that the coaching institute should be closed down or should be should be raided. And my personal life has also been attacked, tarnished in the social media, and we
in this connection, we have to say that we are open to investigation by any authority, may it be CBI or SIC. In the process of investigation, if I am found to be involved in a PPSC paper leakage case, or for that matter, if any of the faculties of Success Point are involved, we are ready to face any consequences. I repeat, if we are found to be involved, punish us, hang us to death, because if we are involved, we are not fit to live in society, depriving the youths, depriving the younger generations. So hang us to death in open places, shoot us to death before camera. Repeat, we are open to investigation by any authority, or in the process of investigation, if I am found to be involved in a PPSC paper leakage case, or for that matter, if any of the faculties of Success Point are involved, we are ready to face any kind of any consequences. Therefore, if any one of you have any evidence, if any one of you have any kind of evidence, please go to SIC and lodge FIR against me, against Success Point, or against Rajiv sir, or any faculties of Success Point. But don't troll us in social media without knowing anything, or just on the basis of hearsay. In case you people continue to drag us unnecessarily just to malign or tarnish the hard-earned reputation and image of Success Point or the faculties or to me, will be compelled to initiate legal action as per established procedure, and you yourself shall be held full responsible for any consequence or outcome of your comment or in social media. You yourself will be you yourself will be held full responsible for any kind of damages. So here is one of the person who has accused us for involvement in paper leakage case, and who has accused me as a member of Arunachal Pradesh Paper Selling Commission. So please take your time and say what you have to say. सबसे पहले तो अपना नाम बताएगा। मेरा नाम नालो दारंग है और GSS मेबो में PGT ज्योग्राफी के रूप में अभी पोस्टेड हूँ। तो हाल ही में जो 30 नवंबर में एक डिस्कशन चल रहा था फेसबुक में, जिसमें ये सक्सेस पॉइंट को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा था। उसी में मैंने एक ब्लंडर कर दिया है। उस ब्लंडर में मैंने ये लिखा कि सक्सेस पॉइंट का मालिक जो है हमारा नंगराम पिंकाप सर है। मैंने कहा, उसके साथ साथ में मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पेपर सेलिंग कमीशन का वो एक मेंबर है बोल के, जिसको आज अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन को अरुणाचल प्रदेश पेपर सेलिंग कमीशन का नाम से जो यूथ पुकार रहा है, उसको हम सर को मैंने उसके साथ में अलाइन कर दिया था। तो उसके बाद शाम को सर ने मुझे ये कहा कि आप गलती कर रहे हैं, आप ये सब गलती कर रहा है, जो लीगल एक्शन लेगा बोलने का मुझे महसूस हुआ कि सच में मैंने सर को बिना कुछ समझे और जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को बिना जाने मैंने ये सब फेसबुक में अंधाधुंधा जो नॉनसेंस काम कर दिया है। तो उसको लेकर मैंने रात को सोचा, फिर सर को तो मैं कॉल नहीं कर सकता, मेरे पास तो उसका फ़ोन नहीं था। तो मैंने पर्सनल मैसेज उसको फेसबुक के द्वारा किया था। तो सर ने थोड़ा नाराज़गी जताते उन्होंने कहा मैं माफ़ नहीं कर सकता बोला। फिर भी सर जो बड़े होने के नाते उन्होंने मुझे, और फिर मेरा डिपार्टमेंट का बॉस होने का नाते उन्होंने मुझे फिर माफ़ कर दिया। फिर भी मुझे ये लगा कि मैंने सोसाइटी में सर का जो इतना हार्ड अर्न इमेज को मैंने तार्निश कर दिया है। तो सिंपली जो फ़ोन में बात करके माफ़ी मांगना ठीक नहीं है। और मेरा जो गलती क्या है, जो मैंने ब्लंडर किया वाला से जो उसका जो सर का फैमिली को जो इफ़ेक्ट होना, जो ट्रॉमा हुआ है, उसका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जितना प्रॉब्लम मिला है, मैं सोचा कि मीडिया में ही आके उसे माफ़ मांग लूँ, ताकि जो सर के ऊपर में जो बीता है उसको कम तो नहीं कर सकेगा। फिर भी मैं माफ़ी सर को मांगने के लिए ही आपके सामने जो मीडिया में आया हूँ। और इस मीडिया का तरफ से मैं अपना फ्रेंड्स लोग को भी यही बताना चाहूँगा, बिना कुछ समझे और बिना कुछ जाने जो मीडिया में आके आप सोशल मीडिया में आके अपना जो वॉइस है अंधाधुंध जो रेज नहीं करना चाहिए। और मेरा जो गलती हुआ है, आज हम ये मीडिया का थ्रू से सर का फैमिली, रिलेटिव्स और सर से ही खुद माफ़ी मांगने के लिए यहाँ में आया है। और
अभी ये देख रहा है कि जो सोशल मीडिया में ये जो सर का नाम जो 2009 बैच जो जिसका वजह से जो APPSC जो है रिफॉर्म हुआ है, APPSC का जो रिक्रूटमेंट में उसको भी जो सर को मेरा वजह से तारनिश है, उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी सर को और उसका फैमिली और उसका रिलेटिव्स को। बस यही उसके लिए हम जो पासीघाट से पांगिन से यहाँ तक जो ईटानगर तक सर को मिलने के लिए आए हैं एपोलॉजी के लिए। और सर जो है बड़ा दिल है, उन्होंने आज माफ़ कर दिया है, इसलिए हम आपका सामने में भी आया है। As he has said, in fact, the defamation case against this person was contemplated. Petition was already drafted. FIR was also prepared yesterday. But yesterday, because of local holiday, I could not lodge FIR in SIT cyber, what called PSQ cyber, what called crime cell. Okay, and he started begging me for pardon repeatedly, and in my personal account and also in my personal contact number. So this press briefing has been called as per his free will, and there is no any kind of undue pressure to him. So please don't interpret this press briefing, his apology, as a pressure tactics. Okay, so that is what I have to say. जहाँ तक 2014 क्वेश्चन पेपर लीकेज केस का बात है, तो मैं यही बोलूँगा कि जरूर न्यूज़पेपर में लिखा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो लास्ट जो रिपोर्ट में भी लिखा है कि सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में एक्सचेंज हुआ है, स्टूडेंट लोग सक्सेस पॉइंट में एक्सचेंज हुआ है। देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ कोचिंग सेंटर और एनी ऑफ द स्टाफ्स। स्टूडेंट्स लोग वहाँ हमारा सक्सेस पॉइंट में जो आते हैं, उन लोग बड़े बड़े लोग एडल्ट लोग आते हैं। जो एक्सचेंज ऑफ पेपर्स इज ऑलवेज नॉर्मल थिंग। लाइक टुडे आप ऑफिस नहीं आया, क्लास नहीं आया, कल यू आर कमिंग बैक एंड यू आर आस्किंग पेपर फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि हम जेरोक्स करने दीजिए आपका नोट्स को। तो इट इज़ एवरीडे नॉर्मल ये है। हम लोग कैसे हम लोग ये करेंगे, क्योंकि और सक्सेस पॉइंट में स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि मतलब 10, 20, 30, 40, 200, 300 स्टूडेंट नहीं है, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। सक्सेस पॉइंट में हज़ारों स्टूडेंट्स है और एक सेंटर नहीं, हमारा बहुत सेंटर है, अलग अलग सेंटर में, और एक बैच नहीं है। राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, अभी ये समय में इस आफ्टरनून अभी भी नॉट लेस देन 1800 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग क्लासेस वहाँ पे, अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर्स में क्लासेस हो रहा है, अलग अलग बैच है, ठीक है, अलग अलग बैच है, अलग अलग सेंटर से। इतना स्टूडेंट्स को कोई भी नहीं सकेगा। और मैं आपके मजाक में भी लगते कि लाइटली ओके, वहाँ पे आके बड़े बड़े लोग आते हैं, बॉयज़ गर्ल्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज खत्म होकर आ जाते हैं, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत भी होते हैं। तो डू आई नीड टू इंटरफेयर इन देयर लाइफ? तो देयर इज नो एनीवेयर, SIT का रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि सक्सेस पॉइंट का इन्वॉल्व है। सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में लड़का लोग एक्सचेंज हुआ था बोल के, वो आपस में, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो हमारा कुछ बोलने के लिए नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट वी वर ग्रिल्ड, आवर स्टाफ्स वर ग्रिल्ड लाइक एनीथिंग, वी वर सब्जेक्टेड टू मेंटल टॉर्चर, वी वर, हमारा पूरा एडमिशन रजिस्टर को चेक किया, उसके बाद हमारा पूरा क्या बोलता है मनी रिसिप्ट को चेक किया, फोटोज़ को चेक किया, उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, क्लास में कौन आता नहीं आता पूरा को चेक किया, क्या मटेरियल देता। वी आर अननेसेसरली ड्रैग बाय what called people in 2014 also. There is no involvement of say. अगर involvement है तो now also you can lodge FIR against success point. अभी भी मैं ये दावा करता हूँ, let there be free fresh what called investigation. We are ready, as I have said in the beginning, we are ready to face any kind of consequences. अगर if we are found to be involved, हम लोग को punishment दे दो, फांसी दे दो, हैंग कर, ओके, हम लोग को हैंग कर दो ना, हैंग अस टू डेथ। और जहाँ तक अच्छा परफॉर्मेंस का यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं आउट ऑफ 26, 27 में हमारा 17 होता है, और एक बोला है कि 51 में 39 हुआ है, एक बोला है कि आपका 106 में 87 हुआ है, 103 में 83 हुआ, 87 है बोलता है। अगर ये जितना रिपोर्ट में बोलूँगा कि ये जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग, हमारा हर एग्जामिनेशन, ये तो कंबाइन कॉम्पिटिटिव वाला को बोला है, हर एग्जामिनेशन में APPSC सिर्फ नहीं है, पहले डिपार्टमेंट का हुआ करता था, कुछ डिपार्टमेंट में फेयर करता था, अभी APSSB में भी, और अलग अलग एग्जामिनेशन में चौथा डिपार्टमेंट का मतलब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जितना स्पेशली जहाँ पे GK और इंग्लिश का जहाँ ये होता है, जनरल स्टडीज़ का ये पेपर्स होता है, आर स्टूडेंट दे आर परफॉर्मिंग बेटर। तो इट इज़ कि ऐसा नहीं कि पूरा सक्सेस होता है बोल के, सक्सेस पॉइंट में आएगा कोई सक्सेस, हम भी बोल रहा हूँ, अर्लियर ऑल्सो आई सेड सक्सेस पॉइंट में आके आपको सक्सेस होगा बोल के गारंटी नहीं है, ठीक है। आई रिपीट इट,
सक्सेस पॉइंट में अगर एडमिशन लेगा स्टूडेंट लोग सक्सेस होगा बोल कभी गारंटी नहीं है। नो डाउट हम लोग वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो देना है, मोटिवेशन देना है, मटेरियल देना है, टिप्स देना है और किसे करके टेस्ट को कैसे अपेयर करना है, कंस्टेंटली जो करना है हम करते। बट एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी। जो स्टडी करते हैं वहाँ पर हजारों लोग कर रहे हैं। इन द कमिंग अगर एग्जामिनेशन में होता है आई डोंट थिंक देयर विल बी लेस देन 10,000 फ्रॉम सक्सेस पॉइंट जो एग्जाम में अपेयर करेंगे। तो इतना हजारों में से कुछ निकलता है एंड वी गिव देम 100% व्हाट कॉल क्या बोलेंगे अटेंशन देके हम पढ़ाते हैं। तो हमारा फैकल्टी लोग जो पढ़ाते हैं सो वेयर इज द क्वेश्चन कि पूरा वहाँ पास हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो निकलते हैं। वी ऑलवेज ट्राई कि 100% हमारा बच्चा लोग पूरा सीट को लेने के लिए हम कुछ करता है। और कुछ कुछ एग्जाम ऐसा है कि इट इज़ नॉट 80%, हम 100% टारगेट कर रहा है। दैट इज नॉट बैड, हाँ खराब नहीं है। बिकॉज हमारा एक बैच नहीं है, 2 बैच नहीं है, बहुत बैच चलता है। अभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग भी अभी भी जाकर सकते, मीडिया पर एनीवन कैन गो ना, एनीवन कैन गो। एंड इवन आई थिंक टुमारो जो देयर इज अ प्रोटेस्ट, वहाँ से भी वो जो ऑर्गेनाइजर्स लोग दे आर कमिंग टू अस एंड रिक्वेस्टिंग अस टू स्पेयर आवर स्टूडेंट्स लोग को वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहा है। तो हम वी वेलकम दैट, जो रिफॉर्मेशन होना है तो हम वी ऑलवेज वेलकम। और ये तय करना है कि सक्सेस पॉइंट में इतना निकलता है कि इतना हजारों स्टूडेंट में से किसी ने नहीं निकलेगा। हाँ, हम नहीं बोलता है कि क्या बोलता है वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट, हम नहीं बोलेगा, बट वी वर्क वेरी वेरी हार्ड विथ व्हाट कॉल डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो इसलिए उसको ये करना तय करना है कि सक्सेस पॉइंट में कुछ पेपर सेलिंग होता है बहुत, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। वी वेलकम दैट, बहुत वेलकम करता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज आई सेड, मैं सक्सेस पॉइंट का मालिक नहीं हूँ। सक्सेस पॉइंट इज रन अंडर ए ट्रस्ट। ओके, दिस इज अ ट्रस्ट जो डॉक्यूमेंट से पूरा यहाँ पे जो जितना फॉर्मेलिटी है जो है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी करना है ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सब कुछ जो फॉर्मेलिटी से जो करना है, ट्रस्ट का अंदर में जो सेक्शन में जो लो के हिसाब से करते हैं, उसका पैन कार्ड को भी चेक कीजिए, सब कुछ कीजिए। ट्रस्ट, आई एम नॉट द ट्रस्टी बट आई एम ए मेंटर। ओके, मैं मेंटर इसलिए कि बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द APPSC एग्जामिनेशन में कैसे स्टूडेंट को करना चाहिए। मैं खुद हार्ड वर्क है, गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ मैंने ना, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि किसे तकलीफ हो, किसे करने से पास होता है, कि टिप्स को मुझे पता है। आई जस्ट गो देयर एज ए मेंटर जब समय मिलता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई ऑफिशियल वर्क्स। तो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सक्सेस पॉइंट इज नॉट अवेलिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ का नथिंग टू डू विद दैट। हम कुछ स्कीम को सही, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यू मस्ट बी सीइंग देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स इन ईटानगर, नाहरलगन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट डॉक्टर्स लोग दे आर रेंडरिंग सर्विसेज। ऐसे ही दिल्ली में भी बहुत सा कोचिंग सेंटर्स में IAS ऑफिसर लोग व्हेनेवर दे गेट फ्री टाइम दे गो एंड टीच। सो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हम सैलरी भी नहीं मिलते हैं, वहाँ से लेते तो नहीं है ना। तो उसमें रादर थैंकिंग मी, उसमें मेरा नाम को लिंक करके ये करना बहुत 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 खराब है। कि आर बॉयज एंड गर्ल्स दे शुड लर्न टू अप्रिशिएट द गुड वर्क्स डन बाय ओके सक्सेस पॉइंट। इन एडिशन टू दैट मैं यही भी कहूँगा कि इन द लास्ट 11-12 ईयर्स हम लोग इतना गरीब वाला बच्चा को जो इंटेलिजेंट है फ्री में भी एजुकेशन बहुत दिया है, अभी भी है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसका इकोनॉमिकली एफोर्ड कर नहीं पाते, हम फ्री देते हैं। एंड नाउ ऑल्सो आई एम पार्ट ऑफ दिस आपसू का जो विद्या स्कीम, हमारा सक्सेस पॉइंट इज ए पार्ट ऑफ विद्या स्कीम जो वेरी रिसेंटली आपसू का लॉन्च किया है ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट। वहाँ भी आई थिंक देयर आर 5-6 स्टूडेंट्स हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय आपसू। We are giving that kind of services. Please thank us. Learn to thank, not only to condemn and to talk negative about elders. Even to the not only to us, to even to the authorities. ये बोलिए कि appreciate करने के लिए हमारे youths लो time has come. You should learn to appreciate the good works. सर इस पर आप क्या बोलेंगे? इसलिए तो I am one of the हम सिर्फ नहीं, हमारा पूरा मतलब पूरा फर्टर्निटी जो पूरा वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। जो भी इन्वॉल्व हो उनको जितना मतलब हार्श पनिशमेंट देना चाहिए। क्यों बोले तो we know our students how they are struggling. Many of them are coming from rural areas. अपना माँ बाप का मेहनत का पैसा को यहाँ पे खर्च करके बेटा है, यहाँ पे रेंट लेके बेटा है। उन लोग रोज़ गाड़ी, टेम्पो, रिक्शा, ऑटो, कोई लोग स्कूटी पकड़ता है 12 लेके, यहाँ पे इतना टाइम को, एनर्जी को यहाँ बेचते, ईटानगर में बेचते हैं।
तो उसको उन लोग का मतलब एनर्जी को, हार्ड वर्क को जस्ट मतलब वेस्ट होता है। तो ये बहुत बहुत दुख का बात है हमारा यूथ को, बहुत डिस्करेजिंग होता है। एंड सिंस वी आर फुली इन्वॉल्व इन दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर द लास्ट मोर देन 1 डिकेड, हमारा कंसर्न होता है कि क्वालिटी होना है। सक्सेस पॉइंट का भी सर्वाइवल भी जब होगा, फेयर एग्जामिनेशन होगा तब ना, नॉट ओनली टू मी, नॉट ओनली टू सक्सेस पॉइंट बट फॉर एनी ऑफ द कोचिंग सेंटर्स जिसका भी हो। तो ये मैं ये करता हूँ कि मतलब गलत नहीं होना चाहिए जो भी हुआ, और हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग इन्वॉल्व, फिर बार बार बोल रहा हूँ, सक्सेस पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट, हमारा इन्वॉल्वमेंट, प्लीज लॉन्च FIR अगेंस्ट अस। ओके, देन अनदर थिंग मैं यही बोलूँगा कि जो हम लोग हमारा अगेंस्ट में जो ट्रायल करते हैं, टेक इट एज ए सजेशन, टेक इट एज एडवाइस भी समझ लीजिए या वार्निंग भी समझ लीजिए ना, कि हमको मालूम है कि लाइक दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन, ऐसा वाला बहुत लोग हैं, मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमको पता नहीं होगा। नन ऑफ यू आर बियॉन्ड आवर रीच। कोई लोग, मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग योर फेक अकाउंट, ट्राइंग टू tarnish the hard-earned image of my personal life as well as to the coaching institute। मैं ये लोगों को बोलूँगा, यू आर नॉट बियॉन्ड आवर रीच। 2-3 लोगों तो हमारा ऑलरेडी, हम ये नाम नहीं लूँगा, 2-3 लोगों को तो ऑलरेडी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होकर पूरा ये भी हुआ है। यू प्लीज डोंट कम एंड बेग पार्डन लाइक दिस जेंटलमैन, एंड टू स्पेशली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, you don't take that freedom to tweet anything whatever you like, comment जो भी करूँगा, किसी को ये करूँगा। your way of life, your activities are always governed by central civil service rules, remember this। and मैं ये भी पता चला कि मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ या फेक नेम यूज करने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग है बोला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं बोलूँगा कि आप लोग भी अच्छा से सर्विस दे दीजिए। You are not going to get anything by pulling us down. You also work hard like us. Today हम frankly बता रहा हूँ, and then another group जो ये करने वाला हो तो अपना नाम को भी रिवील दिखा रहा है। They are the students who are not getting admission in success point. सक्सेस पॉइंट में एडमिशन नहीं मिलता, वो हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारा वहाँ हजारों स्टूडेंट है, तो एक दो जब आप आते आपको एडमिशन नहीं मिलता, when you are coming, that what we can do? You are not coming in time। तो ये मैं बोलूँगा कि आप लोग एडमिशन नहीं मिला बोल के प्लीज़ गुस्सा मत हो जाए। अभी भी जब हम एडमिशन जब शुरू करते हैं, विदिन 3-4 आवर्स में पूरा खत्म हो जाते हैं। कीप योर सेल्फ इफ यू वांट टू स्टडी इन सक्सेस पॉइंट। आउट ऑफ जेलेसी बोलेगा, क्या बोलेगा पता नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिला बोल के प्लीज़ 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 ट्रोल मत कीजिए, ठीक है। और ये और भी ये मैं बात ये भी बताऊँगा कि स्पेशली टू जो यूथ्स लोग कॉलेज से यूनिवर्सिटी जो स्कूल में पढ़ रहा है, बिना मतलब सोचे समझे आप एलिगेशन मत लगाइए सोशल मीडिया में। अगर ये लगाएगा तो यू, एज आई हैव सेड, यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेजेस। हम नहीं छोड़ेंगे, एंड नन ऑफ यू आर बियॉन्ड आवर रीच। एंड हैविंग सेड दिस, आई ऑल्सो वुड लाइक टू से सक्सेस पॉइंट वाज एस्टैब्लिश्ड way back in 2011 with the sole motive to give quality education who are interested in preparing for civil service examination, because I myself was in Delhi। मुझे पता है कि वहाँ कितना खर्चा आज का दिन में वहाँ पे, इफ़ यू आर हैविंग 5 लाख 10 लाख से नहीं होने वाला है। आपको वहाँ साल भर बेचना होगा, तो कोचिंग बहुत ज़्यादा होता है, फीस बहुत ज़्यादा होता है, आने जाने फ्लाइट का, ट्रेन का, वहाँ बेचने का, रेंट का, बियॉन्ड मतलब द कैपेसिटी ऑफ एनी नॉर्मल हमारे यहाँ का लोगों का। तो एट द डोर स्टेप वी आर रेंडरिंग सर्विसेज कम, बहुत कम मतलब रेट में इन कंपेरिजन टू व्हाट कॉल हमारा वहाँ पे दिल्ली का, ठीक है। उसको लेकर फीस को बारे को लेकर भी बहुत कुछ हला करता है। वी इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अस, एंड हम लोग की फोर्स भी नहीं करते यहाँ पे आने के लिए। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू कम, ऑल ऑफ यू आर कमिंग, एक दूसरे को तेला तेली होकर आते हैं एडमिशन लेने के लिए। आई होप कि ये मैसेज, विद दिस मैसेज द एलिगेशन जो लेवल हमारा सक्सेस पॉइंट में जिसका हुआ है वो क्लैरिफाई हुआ होगा। और जेंटलमैन भी हमसे एपोलॉजी मंगाए, वहाँ से आया है, नहीं हैज़ डन एट हिज फ्री विल, ही रिक्वेस्टेड मी, मेरा पर्सनल नंबर में ये किया है।